Can we start now? Is it time to kick-start our show? Very good evening, my dear viewers. Indeed, it is a blessed hour of divine grace in as much as we are very much into the 83rd session on Education Pe Charcha. And indeed, this being, as I already said, as I already means bowed before the Almighty, because this being a very, very interesting and a special session, in as much as I am closeted with His Holiness, Revered Swami Umakanta, Dr. Umakanta Nanda Saraswati Maharaj, the Mahamandaleshwar of that of Juna Akhara. But my dear viewers, why it becomes extremely important? Because indeed, I have been looking for some very, very, a philosopher, who in fact has a deep insight into that of Sanatana philosophy for quite some time. And it was just serendipity, I wouldn't say serendipitously, but nevertheless, all of a sudden stumbling upon our, revered Guruji, and then, I very earnestly requested him to adorn our Education Pe Charcha as a very, very special guest, so that our viewers, both on Sanskritam, which happens to be almost a lakh, and of course from across the world, people can understand his perspectives on that of Sanatana philosophy, the sort of turbulence which is being afflicted in our society and even across the globe. Because my dear viewers, you all would appreciate scenario in contemporary times is absolutely inconducive for human habitation. War, on one hand, war is going on between Ukraine and Russia. On the other, there had been a tremendous sort of apocalypse in that of Turkey, which had resulted in the death of scores of people. My dear viewers, even in our society, there has been a frequent breakout of fights, some sort of internal contradiction, social inequality, social, equilibrium, which has been the cause of major, upheaval even in our society. Therefore, and most importantly, it is my personal feeling, which is being shared by the multitude, that Hindus, especially Hindus, happens to be the only race in the world today who cannot claim to have ownership over a particular country, because India, being a secular nation which has so many stakeholders claiming their nationhood over India. So therefore, to set all my apprehensions in rest, today I have stumbled upon one of the institutions in terms of both learning as well as practical exposure. That is His Holiness, Revered Dr. Swami Umakanta Saraswati Maharaj. And you'd be surprised to know this great Swami has his rich, almost beyond 60 countries, revered, with a worshipful adoration, both within India and across the world. But most importantly, even more in Mauritius, he is the most likeliest face, who has been dominating the spiritual mind space of that of the Mauritian, or the people or inhabitants of Mauritius, for almost decades together. So here is a man who in many ways, myriad ways, claims to champion Hinduism across the world today as a yogi with a myriad dimensions of life. So today we are going to unravel his myriad dimensions with almost all the questions which are troubling both the Oriental as well as the Occidental society. I really, from the depth of my heart, I thank Swami Umakanta Saraswati Maharaj for giving me his invaluable time for discussing all the questions which becomes a matter of humongous concern for humanity in contemporary times. And just because he has a vast following who understand Hindi, preferably
more than they understand English, I will ask him questions in English as well as in Hindi, and when he will respond to my questions in Hindi, for the greater understanding of his followers, I will try to sum them up even in English, so that for the anglicized audience of ours, it will absolutely be negotiable and absolutely be, very, very comfortable to understand. Thanks a lot, Revered Swami Ji. आपने हम लोगों को, you have given us such invaluable time, sir. I very much thank you for just on behalf of behalf of our audience. And today there will be n number of people, in fact, watching this video right now, and those who will eventually watch this video. I very much welcome you, sir, with all my folded hands. Here begins the first question, sir. To Revered Swami, His Holiness Revered Swami Umakantanand Ji. Here comes the first question. Sir, what would be the norms, as I already explained you, my dear viewers? Question will be first, spoken in English. It would be translated into Hindi. As our Revered Swamiji would respond in Hindi, just quickly I would sum it up in English before I switch over to the second question. Here goes the first question, my dear viewers. Why do you think, Revered Swamiji, that Sanatan Dharma, despite being the oldest civilization on earth, mind you, my dear viewers, oldest civilization on earth, the civilization which had realized God, as Swami Vivekananda said in World Parliament of Religions in 1893, when the Western forefathers were wandering or meandering into the forest, our forefathers were realizing God. That is the greatness of Sanatana Dharma. Question. So, sir, why do you think that Sanatana Dharma, despite being the oldest civilization on earth, had to pass through the volatility of times and vicissitudes of fortunes since millennia? And now the question comes to you, sir, in Hindi. स्वामी जी, आप कैसे सोचते हैं कि सनातन धर्म, जो कि भारत का सबसे पुरानी विश्व का सबसे पुराना सभ्यता है, हजारों साल का कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरा, आखिर ऐसा क्यों हुआ, सनातन क्यों गुलाम हुआ, इस पर कृपया प्रकाश डालें। आदरणीय माननीय हमारे हिज होलीनेस स्वामी उमाकांतानंद, डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज। सर, योर टेक नाउ। Thank you, Jaji. First of all, I'll give you answer in Hindi because this discussion is on air on Shashwatam channel also, because subscribers are Hindi people, so I will give you answer in Hindi. क्योंकि हजारों लोग हमारे हिंदी वाले हैं, इसलिए हिंदी में देना ही उचित है। आपने प्रश्न किया कि सनातन पुराना है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। सनातन शब्द का अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, जो है वही सनातन है। इसी को हम शाश्वत कहते हैं, इसी को हम इमॉर्टल कहते हैं, एवरलास्टिंग कहते हैं। जो है ही वही ईश्वर है, वही प्रकृति है, वही सत्य है, उसी को हम सनातन कहते हैं। जहां समस्या ये होती है कि कुछ परंपराओं के कारण, कुछ चीजों के कारण पुराना और नया कहा जाता है। ओल्डेस्ट बोलना भी बहुत अच्छा नहीं है। जब से सृष्टि बनी है और तब से जब लॉ ऑफ नेचर है, जीवन जीने के लिए जो चीजें हमारे लिए प्राकृतिक रूप से उपयोगी रही है, नेचुरल रही है, और वो हमारे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयुक्त रही है, उसी को हम सनातन कहते हैं। सनातन इज नॉट सिंपल अ रिलीजन, सनातन इज लॉ ऑफ नेचर, एंड सनातन इज इमॉर्टल, एवरलास्टिंग। सनातन इज नॉट अ सेक्ट like Islam or Christianity. They have only one book and they follow that book. सनातन बहुत समृद्ध है। ये जितने संप्रदाय हैं, जितने सेक्ट हैं, सब अच्छे अच्छे अपने तरीके से, लेकिन इनके पास एक किताब है
किताब हटा दिया जाए तो इनके पास धर्म ही नहीं है। सबके पास एक ही पुस्तक है और उस पुस्तक को ही फॉलो करना इनके लिए सब कुछ है। भले ही वो पुस्तक आज के हिसाब से उपयुक्त हो या ना हो। बहुत गैलीलियो को लोगों ने इतना तड़पाया, इससे तो उसने कह दिया कि ग्रह नक्षत्र पृथ्वी गोल है, चक्कर लगा रही है, साबित हो गया। जानते थे बड़े बड़े ज्ञानी लोग कि गैलीलियो ठीक बोल रहा है, लेकिन फिर इस बाइबल का क्या करेंगे? ईश्वर की किताब है। आज भी समस्या यह है कि जो लोग कई धर्मों के, जैसे लाइक इस्लाम, समझदार बुद्धिजीवी हैं, उस धर्म को मानने वाले साइंटिस्ट हैं, वो लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल भी है और थोड़ी सी चपटी भी है, लेकिन वहां तो लिखा है कि पृथ्वी एकदम फ्लैट है, चक्कर नहीं लगाती है, कि उस पर कोई आराम कर रहा है और उस पर पहाड़ बनाए गए हैं बैलेंस बनाने के लिए। हमने एक इंटरव्यू देखा, कुछ साइंस के विद्यार्थी इस्लाम को मानने वाले किसी से पूछ रहे थे कि हमने तो विज्ञान में ये पढ़ा है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है और गोल है, थोड़ी चपटी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये एकदम फ्लैट है और ये घूमती फिरती नहीं, तो कौन सा सच माने? तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो इसमें लिखा वही सत्य है, विज्ञान कुछ भी कहे। तो बहुत तरह की बातें हैं। हम लोगों का मूल मुद्दा था कि सनातन ओल्डेस्ट हम उसको कहते हैं जिसकी कोई समय सीमा हो। ओल्डेस्ट कि इतना पहले, उससे भी पहले और एकदम उससे भी पहले, लेकिन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है टाइम की। सृष्टि कब बनी पहले ये ढूंढा जाए, फिर लॉ ऑफ नेचर उस समय कैसे आया ये ढूंढा जाए, तो सनातन का टाइम पीरियड हम ढूंढ पाएंगे। इसलिए उसको ओल्डेस्ट भी बोलना बहुत छोटा कर देना है। सनातन सत्य है, सनातन ईश्वर है, सनातन अस्तित्व है, सनातन प्रकृति है, सनातन पूरा ब्रह्मांड है, जो इसका सिस्टम है वो सनातन है, और उसमें जो चीजें हमारे जीने के लिए उपयोगी है वो सब सनातन है। हमारे हेल्थ के लिए जो जरूरी है, जो नियम बनाए गए, हमारे परिवार के लिए जो जरूरी है, जीवन के लिए जो जरूरी है, और इस लोक और परलोक के लिए जो जरूरी है, सब सनातन है। भ्रम पैदा होता है कि जब एक सेक्ट वाले सनातन को भी अपने सेक्ट जैसा ही मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि एक दायरे में इसको भी होना चाहिए। ये तो बहुत किताबें इनकी है, बहुत देवता है, बहुत तरह की परंपराएं हैं, तो ये कैसा धर्म है? एक किताब होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। ये रूल भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सामाजिक संरचना के हिसाब से वहां के लोगों के जीने के लिए जो जरूरी था वो नियम बना दिए गए। जैसे जिसको आप मोरालिटी कहते हैं, एथिक कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। रिलीजन के अंदर 3 चीजें को अगर मान लें धर्म के अंदर, फर्स्ट मोरालिटी, नैतिकता, दूसरा मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान, तीसरा रियल रिलीजन। तो नैतिकता एक चीज है, तत्व ज्ञान और मेटाफिजिक्स क्या चीज है? यह है जीव, प्रकृति और ब्रह्म के अंतर संबंधों को अगर समझते हैं आप, तो आप मेटाफिजिक्स समझ रहे हैं। और जब आत्म तत्व में लीन हो गए और उसको समझ गया, उसका ज्ञान हो गया, तो आप आध्यात्मिक हो गए। तो मोरालिटी क्या है? व्हाट इज मोरालिटी? Morality is always influenced by situation and climate. नैतिकता हमेशा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। जहां पानी कम है तो वहां धर्म अभी नहीं आया, अभी उसका आउटर पार्ट, कैसा कपड़ा पहनेंगे, किस कलर का होगा, दीज आर नॉट रिलीजन, आउटर पार्ट ऑफ रिलीजन, मोरालिटी। तो आप, पानी कम है, रेगिस्तान है, तो नियम लिख रहे हैं कि आप ऐसे लोटे का प्रयोग करिए जिसमें पाइप लगा हुआ हो,
और थोड़ा सा पानी भी न गिर पाए, बर्बाद ना हो। और नहाना जरूरी है तो पानी की तो कमी है, इसलिए यहां से पानी गिराइए और इतने से ही काम चला लीजिए। तो जहां पानी नहीं था, ये वहां के लिए नियम लिखा गया, पूरे विश्व में यही नियम लागू होगा। अरे पानी को में डुबकी मारो, क्या दिक्कत है? ठीक है। जहां साग सब्जी नहीं मिलती थी, वेजिटेबल्स की कमी थी, तो वह गधा बकरी घोड़ा जो है मार के खा लो, ये धर्म है आपका। जीवन बचाना पहले धर्म है। तो ये मोरलिटी बन गई, नियम बन गया। कुछ धर्मों में चचेरी बहन से शादी करना अधर्म नहीं है, और हमारे धर्म में महापाप महाअधर्म है। परिस्थितियां बदल गई, वो भी धर्म ही है, ये भी धर्म ही है, लेकिन घटना एक अधर्म हो रहा है और एक के लिए वो धार्मिक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी मंदिर में जूता चप्पल पहन के जाना महान अधर्म है हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए। लेकिन किसी में जूता पहन के जाना भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चर्च में जाएंगे तो पादरी भी सूट बूट और बूट में जूते में जाएगा। क्या पादरी को ईश्वर नहीं मिलते? उसको भी भगवान मिलते हैं, उसको भी अनुभूति होती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि वो ठंड प्रदेश है, अगर वो पैर धो के जाएगा 3 बार बीमार हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया। तो लोग अपने परिस्थिति जन्य उत्पन्न सामाजिक व्यवस्था के धर्म को ही, सेक्ट को ही, संप्रदाय को ही संपूर्ण धर्म मान लेते हैं। इसलिए उनको व्यापक धर्म का कॉन्सेप्ट, परिकल्पना समझ में आ भी नहीं सकती है। अभी एक सज्जन ने एक बयान दिया, मिस्टर मदनी, बड़ा बवाल मचा हुआ है कि सबसे पुराना धर्म विश्व का इस्लाम है। तो क्या उदाहरण दिया कि आदम सबसे पहले आदमी है और उन्हीं से सब बाकी पैगंबर हुए हैं, और आखिरी पैगंबर हमारे वाले हैं, और आखिरी किताब ये वाली है। उन्होंने लिख दिया तो आपकी आखिरी किताब हो गई। कोई और एक लिख देगा, बोलेगा ये आखिरी है, तो क्या कर लीजिएगा? आप हजारों हजारों साल के दर्शन को, उस चिंतन धारा को समझ ही नहीं पा रहे। आदम शब्द आपके उर्दू फारसी का हो सकता है, अब हिंदू धर्म या सनातन तो कहेगा कि मनु महाराज हुए, मनु और शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई। और सेम कहानी मत्स्य पुराण में है, जो वहां पे इसके लिए है कि एक नाव में सबको रखा गया, बचाया गया। लेकिन यहां मदनी साहब को समझने जैसी बात है कि हमारे धर्म में जो मनु की परिकल्पना या व्यवस्था बताई गई है, एक मनु नहीं है, अनंत मनु हुए हैं। ये जो मनु की चर्चा हो रही है मत्स्य पुराण में या अन्य पुराणों में, वो वैवस्वत मनु की हो रही है, उसके पहले भी मनु हुए। तो आपके आदम कब हुए? ये तो इररिलेवेंट है, लेकिन उन्होंने कह दिया और उस पर बवाल मचा हुआ है। 1400 साल पहले जो सेक्ट है, एक विचारधारा है, एक जीवन जीने की अपनी एक जगह के लिए एक शैली बनाई गई, और पूरे विश्व में आप धूम मचाए हुए हैं। आप मानिए, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन ये साबित करने पे क्यों तुले हुए कि हम ओल्डेस्ट है? क्योंकि आप कहीं है ही नहीं ओल्डेस्ट के, क्योंकि आपका प्रश्न था ओल्डेस्ट। यहां मारामारी आज चल रही है ओल्डेस्ट की। ये कौन ओल्डेस्ट? जब आप पैदा नहीं हुए थे, आपने कल्पना बना ली कि जो हुआ है वो सब हम ही थे। तो जब आपने एक शब्द उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक है, एक और उसमें आया था, तो ओम और अल्लाह एक है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सब देवताओं को एक ही मानते हैं, ईश्वर एक है, पंथ अनेक है, रास्ते अनेक है, पहुंचना एक है। हम लोग तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन आप मानेंगे इस बात को? अगर मानेंगे तो अल्लाह कभी करिए, कभी ओम भी बोल लीजिए। अगर एक ही है तो कभी मस्जिद जाइए, कभी मंदिर में भी सर झुका लीजिए। और जो सनातनी है वो तो बाजार पे भी सर झुका लेता है, वो तो कहीं भी चादर भी चढ़ा देता है, मस्जिद भी देखेगा तो भी प्रणाम कर लेगा।
Thank you, Swamiji. Actually, we have got to, my dear viewers, you heard about Revered Swamiji was explicating on the overall importance and because of the fundamentals of that of Sanatana Dharma, because he says Sanatana is immortal, Sanatana is truth, Sanatana is beginningless as well as endless. And the very verse of the stanza that he was emphasizing upon has its own, means I would say awesome relevance. Because what our great Swamiji says, he talks about the equality of all religions because he was trying to just quote Mr. Madani, who had come up, who had stirred another controversy just a couple of weeks ago, when he said that when he equated Om and Allah and said that Islam is the oldest religion, we don't, of course, Guruji, our revered guest, has very much explicated on the same. But here, the moot point is the greatness or the oceanic depth of Sanatana Dharma has been showcased by Swami Vivekananda in the World Parliament of Religions in 1893. My dear viewers, it becomes very incumbent on the fact to make an announcement here. Our revered guest too had participated in the Parliament of World's Religion, in Cape Town in the year 1999. So you can well understand he is not an ordinary saint, but a saint of saints, because he too had stepped into the shoes of that of Swami Vivekananda, because when he addressed in Chicago, here is a monk sitting beside us by way of our esteemed guest. He addressed the Parliament of World Religions in Cape Town in the year 1999. So you can well understand when he says that the greatness of Hinduism in treating all religions as equal, he means Ekam Sad Vipra Bauda Badanti, the quotation of Veda, which embraces all religions as leading to the same God. Thank you, Swamiji. Thanks a lot. Straightway, since we have got so many questions, my dear viewers, and Swamiji's viewpoints, perspectives on all these questions become very, very important. So, here comes the next question. Who do you think contributed to breaking the backbone of Sanatana civilization? British or Muslim invasions? सर, आपके अनुसार सनातन सभ्यता का जो किस तरह से हनन हुआ, क्या ब्रिटिश हुकूमत को जो कि मकाउने का प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड था, उसको आप मानेंगे ज्यादा खतरनाक, या जो मुस्लिम इन्वेजन्स हजारों साल से भारत में चल रहा है वो सनातन का कमर को तोड़ा है या सनातन का हनन किया है? आप इसका विचार इस पर हमारे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट मीनिंग ऑफ सनातन. No one can break the bond of Sanatana. कोई भी सनातन के कमर को कभी नहीं तोड़ सकता. सनातन कोई एक किताब नहीं है, सनातन एक कोई आदमी नहीं है, सनातन कोई बिल्डिंग नहीं है कोई उसको तोड़ देगा. सनातन जीवन शैली है, सनातन ईश्वर है, सनातन शक्ति है, सनातन परंपरा है. आपका जो व्यू है कि वो परंपराएं कम हुई, बाहरी प्रभाव आया, तो निश्चित ही मुस्लिम इन्वेडर्स का कुछ प्रभाव हुआ, बहुत ज्यादा नहीं. तो लेकिन वो किस टाइप में हुआ? कन्वर्जन के रूप में हुआ. सनातन पे आघात नहीं हुआ, सनातन में से खींचा गया कि उसको जीने वाले लोगों में से काफी लोगों को लगभग, क्योंकि बहुत लोग बाहर से नहीं आए थे, ये जो करोड़ों करोड़ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिला के, बाहर वालों का छोड़ दीजिए दूसरे देशों का, लेकिन ये दो कंट्री के जितने भी हैं इनमें से 99% कन्वर्जन है. बहुत मिलते हैं. अभी कई रियाज खान आते हमारे पास, बोले हमारे नाना जी हिंदू थे. एक यूपी में आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमारे दादाजी हिंदू, परदादा हिंदू थे. तो लगभग 99% कन्वर्जन हुआ. सिद्धांत नहीं टूटते. सनातन सिद्धांत है, परंपराएं नहीं टूटी, लोग टूटे. वो तो वही खड़ा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया कि सनातन को नुकसान पहुंच गया. सूर्य को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? उतने टाइम पे उगेगा, उतने पे डूबेगा. तो नुकसान किस चीज को हुआ? इस सभ्यता संस्कृति के लोगों का. उनमें से बहुत सारे लोग दूसरे परंपराओं में गए.
शौक से गए ये माना जाता है, वो लोग कहेंगे जबरदस्ती कत्ल करके, हत्या करके, दबाव डाल के कन्वर्जन किया गया। एक तो ये कारण रहा। दूसरा आपने पूछा मैकाले। 1835 ईस्वी में मैकाले के बॉस का नाम हम भूल रहे हैं, उनको ब्रिटिश के पार्लियामेंट से एक फरमान आया कि आप सर्वे करिए कि भारत के उन्नति का कारण क्या है। तो उसने कहा एजुकेशन, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप इसका सर्वे करिए। तो उसने असिस्टेंट रखा लॉर्ड मैकाले को, और मैकाले ने पूरा सर्वे किया। सैकड़ों पन्ने का वो रिपोर्ट है, जो अभी आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिल जाएगा, जो रखा हुआ है। और वो रिपोर्ट जब गया, मैकाले ने वहां पेश किया, तो पूछा गया कि इतने बुद्धिमान, इतनी टेक्नोलॉजी, जो आज लोग कहते हैं कि साइंस विदेशियों ने हमको सिखाई, जो आज लोग कहते हैं कि सर्जरी विदेशियों ने हमको सिखाया, हम तो अनपढ़ गंवार थे, नहीं तो अंग्रेज ना आते तो हम पता नहीं कहां चले जाते। ये घटना बहुत दिन पहले की नहीं है, 1835, सिर्फ 1835 की बात है। और पार्लियामेंट में वहां के ब्रिटेन के ये मुद्दा रखा गया, और उसने क्या सुनाया, जब पूछा तो उसने कहा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग है। तो बोले कैसे पढ़ाते हैं? तो मैकाले ने कहा 8 लाख 8 लाख गुरुकुल है। तो बोले ये कैसे हो सकता है? जितने गांव हैं उतने गुरुकुल है। तो क्या पढ़ाया जाता है? 18 सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, सर्जरी, कल्चर, वेदा, एवरीथिंग, 18 सब्जेक्ट्स। बोले इसके आगे बोले यूनिवर्सिटीज है, नाम यूनिवर्सिटी नहीं बोलते लोग, विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो बोले उसमें क्या है? तो उसने उदाहरण दिया कांगड़ा विश्वविद्यालय, जहां सर्जरी सिखाया जाता है। उसने उदाहरण दिया अमरावती विश्वविद्यालय, जहां पे जो पारद और केमिकल्स है इसके ऊपर रिसर्च होता है। तभी एक पार्लियामेंटेरियन उसी हाउस का खड़ा हुआ, उसने कहा हम 2 लाइन कुछ कहना चाहते हैं। बोले क्या? कि मैं भी वहां था, मुगलों से मेरी लड़ाई हुई, एक मुस्लिम शासक से मैं हार गया, और उसने मेरी नाक काट के छोड़ दिया। नाक कट गई, ये एकदम प्रूफ सही थे, कोई खोज ले वहां पे उसने पार्लियामेंट में, और खोज के लाया हुआ प्रूफ है। और कांगड़ा में मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराया, ये नाक जो है ओरिजिनल नहीं है, और इंडिया का सर्जरी किया हुआ है। 1835 से पहले भारत का साइंस ये था। लेकिन आज के हमारे आधुनिक बच्चों को सिखाया जाता है कि सारे शोध उन्हीं लोगों के हैं। हम तो गरीब, अनपढ़, गंवार, खाना नहीं आता था, उन्होंने चलना सिखा दिया, उन्होंने पढ़ना सिखा दिया। 1835 की बात हम आपको बता रहे हैं, जब इंग्लैंड में नॉट अ सिंगल स्कूल, कोई स्कूल भी नहीं होता था वहां। उस समय यहां पे 8 लाख गुरुकुल होते थे। पहला स्कूल क्या बनाया गया? बाइबल पढ़ाने के लिए, जो इंग्लैंड में एक मोन्यूमेंट बना के रखा हुआ है उस स्कूल को। क्यों स्कूल नहीं थे? स्कूल इसलिए नहीं थे कि वो फिलॉसफी को मानते हैं प्लेटो के या एरिस्टोटल के। उनकी फिलॉसफी के हिसाब से राजा को छोड़ के बाकी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए राजसत्ता के इर्द गिर्द वाले लोगों को पढ़ाया जाता था, बाकी पढ़ लेंगे तो राज ठीक से चल ही नहीं पाएगा। इसलिए स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जब कॉन्सेप्ट आया 1835 के बाद, तो बाइबल पढ़ाने के लिए आया, शासन पढ़ाने के लिए नहीं, साइंस पढ़ाने के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए नहीं। यहां अमेरिका की चर्चा नहीं हो रही, इंग्लैंड की चर्चा हो रही। और शादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, विवाह नहीं कर सकते थे, और करने का था ही नहीं। 6 महीने इसके साथ रहे, साल भर इसके साथ रहे, लिविंग रिलेशनशिप। आज वो यहां आपके यहां भी हो रहा है। बच्चे हो गए, कहां जाएंगे? तो बाहर रख देते थे, कुत्ते सियार ले जाते थे। तो शासन ने व्यवस्था की कि इन बच्चों को रखने का कोई जगह बनाइए, तो बनाया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? कॉन्वेंट। इन अनाथ बच्चों को रखने के जगह को कॉन्वेंट नाम दिया गया।
आज भारत में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले कॉन्वेंट में मेरा बच्चा पढ़ता है, अच्छा अनाथालय में पढ़ता है, अर्थ भी नहीं मालूम है। फादर्स डे, अभी आपके मुद्दे पर आएंगे, हम थोड़ा सा एक दो लाइन बता दें। गुरुजी एक्चुअली हमारे पास 10 क्वेश्चन है। बस कोई बात नहीं, एक दो लाइन खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है जो समाज को समझना चाहिए। फादर्स डे पिता के सम्मान में वहां नहीं मनाया जाता। जो हम लोग सोच लेते हैं कि पिताजी के सम्मान के लिए फादर्स डे, तो हम आज पिताजी को गिफ्ट देंगे। उन बच्चों को पता नहीं होता था कि हमारे फादर कौन है, जो कॉन्वेंट में रहते थे। उन बच्चों को पता नहीं होता था कि हमारी मदर कौन है। तो जो पढ़ाते थे, बुजुर्ग हुए, बड़े हुए, उन्हीं को फादर कहने लगे, और जो कम उम्र की होती थी उनको सिस्टर कहने लगे, और जो बुजुर्ग थी उनको मदर कहने लगे। फिर बाद में कुछ के पता चल जाता था कि इनके फादर और मदर कौन है, तो नियम बनाया गया कि साल में एक दिन ये बच्चा अपने फादर के पास साथ में खाना खाएगा, क्योंकि उसके तो फादर के और भी बहुत बच्चे हो चुके हैं और बहुत मदर चेंज हो चुकी है, और सबसे 8, 10, 20 इधर उधर घूम रहे हैं। तो एक दिन मौका मिलता था खाने का, उसको फादर्स डे नाम रखा गया। और इस देश में जहां रोज मदर फादर की सेवा करने का अवसर है, मौका है, और उनके साथ रोज खाने का है, उसको फादर्स डे मनाने की जरूरत क्या है? ग्रेट स्वामी, ग्रेट। मदर सेम मदर्स डे में कि पता चल जाए कि मदर कौन है, तो मदर के साथ एक दिन बच्चे को खिलाया जाता था, उसको मदर्स डे कहा जाता था। और हमारे यहाँ तो माँ रोज साथ में है। फिर क्यों हम अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं? ग्रेट सर, नहीं समझने के कारण। ग्रेट माय डियर व्यूअर्स, अभी एक लाइन प्लीज स्वामी जी, वी हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस सर। तो आपका क्वेश्चन ये था कि इन्वेडर्स के कारण क्षति हुई कि मैकाले के सिद्धांत के कारण। तो वहां की पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि आप जाइए और एक शिक्षा प्रणाली बनाइए, और ऐसी बनाइए जिसको पढ़ के हमारे गुलाम लोग पैदा हो। भारतीय संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ आप बनाइए। और उसका एक कानून बना उसके लौटने के बाद यहाँ, और उस कानून के तहत ये घोषित कर दिया गया कि भारत में जितने भी संस्कृत में गुरुकुल चल रहे हैं अवैध है, और सरकारी स्कूल जो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंग्लिश मीडियम, वही वैध माना जाएगा। तो उन विद्यालयों को, गुरुकुलों को बंद किया गया। 10 साल 20 साल टॉर्चर किया गया, फांसी दे दी गई, आचार्यों को खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे 50 साल में वो नष्ट हो गया, पूरी तरह प्रणाली खत्म हो गई। Thanks sir, thanks Guruji. My dear viewers, what our revered Guruji is trying to say is absolutely, he is focusing on this, means his prima facie. His point is this, that British colonization means Macaulay's system of education had somehow was institutionalized to colonize the minds of the indigenous people of India. And today also we can see the anglicized education having made a deep inroad even into the countryside of this country. It's all because of Macaulay uprooting the very ancient institutionalized education and instead seeking to replace it by so-called anglicized education. And Guruji, our revered guest, has very, been in a very distinctive way, he tried to dissect the vitality of the points as to why he considers European ways of life, European culture, Occidental ways of life, far inferior to that of our own Oriental system. Thank you, Guruji. Thanks a lot. Sir, I'm just to come to this question because we have several questions, sir. That's my request would be that if you could just kindly shorten your responses, because you are a Saraswati Mata unto yourself, but time constraint is a big factor. Straight we come to this question. Westminster, my dear viewers, if question goes in English, Hindi will follow. Westminster model of British parliamentary democracy. That is what is institutionalized today in our country. Now, the question goes, Westminster model of British parliamentary democracy, which our constitutional forefathers had chosen for all of us, with the benefits of hindsight, stands justified for Hindu community, the majoritarian community in this country?
And what about the perspective of other stakeholders? In the Hindi, it's just the Hindi version. Westminster model of British parliamentary democracy, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए चुना है, क्या वो हिंदुओं के लिए सही था और सही ठहराया जाएगा आज, जबकि 7 दशक हम लोग स्वतंत्रता का देख लिए हैं, और दूसरे देशों के लोगों के लिए, दूसरे हमारे देश के जो दूसरे हिंदू के अलावा जो लोग हैं, आपका इस दशक का अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपका क्या उत्तर होगा स्वामी जी, प्लीज? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना कोई नया तो बनाया नहीं गया। ब्रिटिश के जो चीज थे उसी को अपने हिसाब से मोल्ड कर दी, पूरी टीम ने काम किया और बड़ा सोच समझ के किया, लेकिन इतने आदी हो चुके थे इन कानूनों के कि बहुत ऐसे कानून जो स्वतंत्र भारत में, भारत के न केवल हिंदू, कोई भी नागरिक हो, भारत के नागरिकों के लिए उचित नहीं था। पुलिस एक्ट, इस टाइप के बहुत चीजें हैं जो, जैसे काला कोट पहनना, ठंड पड़ती है इंग्लैंड में, इसलिए वकील काला कोट पहनता है, और यहाँ गर्मी के दिनों के साहब काला कोट पहने पसीने में, ये कौन सा कानून है? अरे कोट, दूसरा कोट का सफेद करवा दीजिए, यहाँ गर्मी का माहौल रहता है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको इस राष्ट्र के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के लोगों के सुविधा के हिसाब से बदला जाना चाहिए था, जो नहीं बदला गया, एज इट इज ले लिया गया। आपने कहा कि हिंदू के हिसाब से, हम क्या करेंगे? सभी नागरिक के हिसाब से। संविधान समस्त नागरिकों के हिसाब से, हर धर्म संप्रदाय का ख्याल रख के बनाया गया, मानवता के हिसाब से बना, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बना, लेकिन उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। कारण यह है, विवादित शब्द है हिंदू राष्ट्र। उस पर हम आएंगे स्वामी जी, अभी आप नहीं, अभी एक लाइन में क्लियर जी, अब उधर ही देगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जी। कि ये जो था बनाया गया तत्कालिक, उसमें सुधार की जरूरत थी, अभी भी सुधार की जरूरत है। ये सरकार कुछ कुछ सुधार कर रही है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे सुधार की जरूरत है। और जब बनाया गया तो सेकुलर नहीं था, इमरजेंसी ने इसको सेकुलर किया गया। हमारा इसलिए इस पे दबाव था, जो आप रोक रहे थे, कि किसी से वैर नहीं, सब खुशी खुशी जिए जो यहाँ के नागरिक हैं, अपने अपने धर्म संप्रदाय मत को माने और खुशी खुशी जिए। लेकिन जब 2 नेशन थ्योरी बनी, बंटवारा हुआ, तो आपने उसको पाकिस्तान दे दिया, इस्लामिक कंट्री हो गया, हिंदुओं को यहाँ हिंदुस्तान दे दिया। तो फिर ये सेकुलर कहां से आ गया कि हम आपको दे दें, आप अपना बना लीजिए। कि लड़ाई इसी बात की कि भाई हमारा अलग कर दीजिए, हम अपने तरीके से जिएंगे, आप अपने तरीके से जिए। लेकिन नहीं, हम अपना तो अपने तरीके से ले लेंगे, अब आपके वाले में भी नहीं चलेगा आपके हिसाब से, तो भाई किधर चलेगा? हम कौन है फिर? तो संविधान में जो हेर फेर कर दिया गया, ये उचित नहीं था। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स लॉर्ड स्वामी जी। My dear viewers, what our very revered guest is trying to insinuate, or in fact it would be incorrect to say he was not insinuating, but indeed harping on the truth, because so many characters like Lord Sri Ram, Lord Sri Krishna, all that were part of the constitution, because Sri Nandalal Bose was hired from Shantiniketan to make such photographs of the icons of his country, which formed part and parcel of the constitution, but they were treacherously and surreptitiously they were removed from the pages of constitution. This was a humongous fraud being conducted upon the citizens of India. Thank you, Swamiji, thanks a lot. Sir, coming to the very next question. Here the question goes in English. Swami Vivekananda talks about Lord Sri Ram as the expression of the soul force of Bharatvarsha. But for claiming the birthplace of Sri Ram, India had to take over 7 decades for reconstruction of Ramlala temple in Ayodhya. How then do you think that this secular India will successfully restore the other priceless legacies of Hindus like Mathura, Kasi, etc.?
हिंदी में क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने श्री राम को भारत का आत्मा माना है। इसको जो है वो कलरा अलम ने भी इमाम हिंद करके श्री राम को जिक्र किया है। तो ये बताए स्वामी जी, मगर देश का 7 से अधिक दशक भारत को लग गया रामलला मंदिर के उद्धार में। क्या आपको लगता है कि ये सेकुलर इंडिया हिंदुओं का जो धरोहर है उसको बचा पाएगा, जैसे काशी और मथुरा और इत्यादि? आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो हम आपको कहे, आपने कोट किया इमाम हिंद। इमाम का मतलब जानते हैं? इमाम पूरा विश्वास, सत्यता। नहीं। और मुस्लिम का इमाम होता है इमाम। हाँ। इमाम मतलब मौलाना। तो क्या राम एक सिंपल मौलाना थे? कोई इमाम हिंद बोल दे, कैसे इमाम हिंद है? वो ब्रह्मांड नायक है। हिंदुस्तान के एक मस्जिद के मौलाना थोड़े हैं हमारे राम जी, जो उस बात को हम मान लेंगे। आम आदमी जो नहीं समझते वो कहेंगे बड़ी अच्छी बात कह दी, इमाम हिंद का। अरे बोल रहे हैं कि वो भी एक संत टाइप के, मौलाना टाइप के आदमी राम जी रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। राम, श्री राम हमारे लिए आत्मा है हिंदुस्तान की और ब्रह्मांड नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपका प्रश्न क्या था एग्जैक्ट अभी? जैसे श्री राम का मंदिर उद्धार करने में देश को 70 साल लगे। हाँ, अब समझ लिया, अब आगे की बात हमको याद आ गया कि समय बदलता है, समय लगता है। ये समय अब बदल चुका है और बदल रहा है। किसी ने लिखा है कि अब युग बदल रहा है, बदलना जरूर है, अब वो भी बदल जाएंगे जिनको गुरूर है। बदल रहा है, लग गया, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी, से देवासुर संग्राम कह सकते हैं। एक हम चाहेंगे बंगला में 2 लाइन सुनाना जी प्लीज। आज की परिस्थितियों पे नजरुल बड़े कवि हुए बंगला के, उन्होंने लिखा, एतो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, एतो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, सजीव হইয়া উঠিয়াছে শ্মশান গোরস্থান, उठियाছে होलाहल उठबे अमृत तेरी नहीं आर। इतने दिनों के बाद भारत का प्राण जाग गया है। शमशान और मंदिर सब जागृत हो गए हैं। हलाहल विश्व ऊपर आ गया है, अमृत नहीं बना है। ये बहुत पहले, लगभग 100 साल या 60-70 साल पहले की बात है जब लिखा हुआ। इतने दिन में हलाहल जा रहा है, अमृत आ रहा है, समय बदल गया। श्री राम को कोई ऐसा देश नहीं जहां के अवतार को, वहां के भगवान को अपने ही घर में अपना प्रमाण देना पड़ता हो। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि श्री राम जी को अपना प्रमाण देना पड़ा। राम लाला विराजमान, कोर्ट में जाते रहे भगवान, लेकिन समाधान हुआ। जो सामान्य लोग कल्पना नहीं कर सकते थे वो हुआ, और होनी थी, निश्चित था कि होना ही है, और आगे भी होनी है। काशी विश्वनाथ भी स्वतंत्र होने वाले हैं। अब इसके लिए कोई एक ने कह दिया कि आज आप लोगों का बहुमत है तो आज राम मंदिर आपने बना लिया, 50 साल के बाद हमारा बहुमत आ जाएगा तो तोड़ के हम फिर वहां मस्जिद बनाएंगे। ये नेशनल चैनल का स्टेटमेंट है। तो हम उनसे ये कह देना चाहते हैं कि वो जमाना गया। आप जो ख्वाब देख रहे हैं गजवाए हिंद का, वो आपकी किताबों तक ही बंद रहेगा, वो गजवाए हिंद नहीं हो पाए। हम आपको थोड़ा सा समय लेंगे। आई वॉन्ट टू नो से अबाउट समथिंग अबाउट गजवाए हिंद। सो मेनी हिंदू पीपल डोंट नो अबाउट गजवाए हिंद, क्योंकि एक हमने संदेश देखा, एक हमारे यहाँ के भाई मुस्लिम पाकिस्तान के लोगों को बहुत गाली दे रहे थे कि तुम लोग गुर्बत में हो, तुम लोग गरीबी में हो, पहले एजुकेशन बढ़ाओ, अपना इनकम बढ़ाओ, समर्थ हो। तो सुनने में पूरा लग रहा था। और हेडिंग क्या दिया कि एक मुस्लिम भाई ने पाकिस्तानियों को क्या जवाब दिया। हमारे बहुत शिष्य मित्र बंधु है मुस्लिम, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक विचारधारा है तो हमारा स्पष्ट है। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कहा, जब तुम समर्थ हो जाओगे तो गजवाए हिंद होगा।
अब हिंदू तो जानते नहीं गजवाए हिंद क्या होता है। गजवाए हिंद का मतलब यह है कि एक दिन हिंदुस्तान पर फतेह किया जाएगा, इस्लाम का राज पूरे हिंदुस्तान पर होगा। और ये जो मेंटलिटी थी जिन्ना कि हम टू नेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हथियार हम इकट्ठा नहीं कर सकते। इस देश में प्राइवेट रूप से हम परमाणु तो नहीं बना सकते, तो एक हम राष्ट्र ले लें और वहां पे हथियार और सेना तैयार करें, यहाँ के लोग यहाँ तैयारी करेंगे गजवाए हिंद की, वहां से हम आक्रमण करेंगे और सब मिलके पूरा ले लेंगे। आप पाकिस्तान टीवी के यूट्यूब सर्च मार लीजिएगा गजवाए हिंद इन पाकिस्तान, पूरा ग्रेटर पाकिस्तान ग्रीन, अफगानिस्तान से लेके कंप्लीट हिंदुस्तान आपको ग्रीन दिखाया हुआ मिलेगा, ठीक है। और गजवाए हिंद में क्या है, जो इस गजवा में शामिल होंगे अगर बच गए तो उनको तो जब जाएंगे तो मिलेगा ही, 72 हूर मिलेगी और सब इंतजाम मिलेगा, यहां राज करेंगे। और अगर मर गए, शहीद हो गए, तो उनको मरियम और जीसस के पास मिलवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ के हुक्मरानों को वो जंजीरों में जकड़ के ले जाएंगे। इसलिए एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसके पास हथकड़ी थी, बोले ये सुरंग में हथकड़ी लेके क्या कर रहा है, जंजीर लेके, वही पढ़ के आया था कि बांध के ले जाएंगे किसी को। जमाना बदल गया, कैसे ले जाएंगे। अब इसमें एक बात जोड़ना चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तानी टीवी चैनल पे आप देखेंगे एक चीज का जिक्र होता है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली, ईरान के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए 14वीं सदी में, सेम टाइम नोस्ट्राडामस। हमने सारी प्रोफेसीज पढ़ी, नोस्ट्राडामस, हरार, जीन डिक्सन, एलन राइट, फ्लोरेंस, जितने दुनिया के हैं प्रोफेसी, उस पर काफी रिसर्च किया हमने लंदन में 96 में। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में एक पुस्तक है जिसमें शाह नियामतुल्लाह बल्ली की भविष्यवाणी है, वो मिल गई हमको। तो हमने देखा पाकिस्तान टीवी पे इस पे बड़ी चर्चा होती है कि शाह नियामतुल्लाह बल्ली ने लिखा है कि एक दिन गजवाए हिंद होगा। तो क्या लिखा है, लिखा कि मुगलों के बाद, क्योंकि बहुत पहले लिखा है, मुगलों के बाद गोरों का शासन होगा हिंदुस्तान में, और गोरे जाते जाते इसको दो भाग में बांट देंगे, जिसमें हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य होगा। एक हिंदू बाहुल्य का कोई भी बड़ा नेता मुस्लिम होगा, उस समय लड़ाई होगी दोनों में, और लाहौर फतेह होगा पहले। अब वो क्या चर्चा करते हैं, ये उनकी चर्चाएं हम नहीं, हमारे जुबान नहीं है कि राहुल गांधी मुस्लिम है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान टीवी का स्टेटमेंट है, खोज लीजिए आप, कि राहुल गांधी मुस्लिम है, बड़े पद पे, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है। यही टाइम है कि दोनों में लड़ाई होगी और पाकिस्तान भारत पे विजय प्राप्त करेगा, गजवाए हिंद हो जाएगा और पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उलट के देखिए, शाह नियामतुल्लाह बल्ली क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम नेता बड़ा होगा जब शासक, उस समय पे हिंदुस्तान साइड से आक्रमण होगा, जिसको उल्टा वो पेश कर रहे हैं। और उनके उसको हम तर्क से ये काट रहे हैं कि उसमें ये भी तो लिखा है कि लाहौर फतेह होगा। तो लाहौर फतेह कौन करेगा, लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो आप ही अपने देश के शहर को फतेह कैसे करेंगे, इसका मतलब आक्रमण हिंदुस्तान करेगा और तब लाहौर फतेह होगा। और उनकी भविष्यवाणी में है कि पूरा एक हो जाएगा। हम इस पे दावा नहीं करते कि दोनों एक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो किस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही था कि जो है रामलला मंदिर, हाँ रामलला प्यार है जी। तो अब समय बदल गया है, वो गजवाए हिंद नहीं होने वाला है, और हमारा विश्वास ही नहीं है, ये भविष्यवाणी है और हर चीज है, समझ लीजिए इसको, कि काशी भी स्वतंत्र होगा और मथुरा भी स्वतंत्र होगा, वो दिन दूर नहीं है, निश्चित ही जल्दी ही वो दिन आने वाला है। और ये भी हम कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड भी जल्दी ही होगा, भले 2 साल लग जाए कि 4 साल लग जाए, इसको कोई रोक नहीं सकता। हर इस देश में, इस राष्ट्र में हर नागरिक के लिए कानून एक होगा, एक जैसे जियो, एक तरीके से रहो, धर्म जब हम पंथ अपने तरीके से भले मानिए, सामाजिक दृष्टि से सब समान होंगे। समान नागरिक संहिता भी यहाँ लागू होना ये भविष्य अनिवार्य है और होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। So nice of you. Excuse me, my dear viewers.
You have seen an erudite face of our esteemed guest today. The way he has been revealing all those sort of very, means a very innate piece of innate information, or rather it's a rivulet of innate information. Indeed, it becomes very, very important for all of us to mull over all that erudite content of our, furnished by our distinguished guest today. My dear viewers, it's already becoming late. We have so many questions now. Straightway coming to the next question. That is indeed, before I ask this question, I would like to say, my dear viewers, about Ramcharitmanas. Our esteemed guest today, a yogi. I already informed you that after Swami Vivekananda's conquest, conquest, that is conquest of Sanatana Dharma, the flag bearer of the conquest of Sanatana Dharma, way back in 1893, in the World Parliament of Religions, Swami Dr. Umakantanandaji Maharaj, he too had stepped into his service in Cape Town in 1999. So that, we can well understand the broadness of his mind, the evidence of which he has produced in plethora. Coming to the next question, sir, because we have short time, and I'm sure you should keep in mind, because you are an epitome of wisdom. There is no dearth of information in you. Many controversies in contemporary times have come to engulf Ramcharitmanas, and you also have an expertise in Ramcharitmanas, because you have been doing kathas also at times at a very, very august places. So many controversies in contemporary times have come to engulf Ramcharitmanas. For instance, the words like Dhol Gawar Sudra Pasunari, Yah Sab Taran Ke Adhikari. Do you think that all these controversy has erupted because the scripture is dubbed as a Brahmanical prescription, which those at the bottom of the social pyramid consider as an anathema and injunction for them? हिंदी में, सर रामचरितमानस के आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वैसे तो आप सब पूरा हिंदू और सनातन धर्म और पूरा विश्व के धर्म के ज्ञाता है, पर रामचरितमानस पर भी आपका उतना ही जबरदस्त पकड़ है, और इसीलिए आपसे ये प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है ये प्रश्न आपसे पूछना। सर, रामचरितमानस वर्तमान समय में विवादों से घिरा हुआ है, घिरा माना जा रहा है। जैसे कि ये जो हमने ये पंक्तियां पढ़ी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, यह सब तारण के अधिकारी, क्या ये ब्राह्मणिकल अनुप्राणित षड्यंत्र है? ऐसा यहाँ के कुछ लोग जो कि हिंदू धर्म में रहते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रामचरितमानस एक काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखित रामायण को इनके वाल्मीकि जी के सामान्य भाषा में अन्य ग्रंथों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमें उपनिषद ज्ञान सब कुछ लेके इसमें डालना है। जैसे आपको मिल जाएगा, गीता में है चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतो जन्म। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगत जगचारी प्रकार, सेम एडिटेड ट्रांसलेशन है, उपनिषद में है इसके बारे में। उसी को कहते हैं यहाँ पे बिनु पद चले सुनई बिनु काना, तो समस्त शास्त्रों का सार है। और जब ड्रामा या कहानी जब लिखी जाती है, भले हिस्टोरिकल फैक्ट को लेकर लिखी जाती है, तो कौन सा पात्र किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहा है, वो तुलसीदास नहीं बोल रहे, वहां घटना क्या है। और रावण कुछ बोल रहा है तो आप कहेंगे तुलसीदास जी ने बोल दिया। किसी फिल्म में ड्रामा में विलेन का रोल अलग है, उसके डायलॉग्स अलग होंगे, और हीरो का रोल अलग है, डायलॉग्स अलग होगा, परिस्थितियां अलग होंगी। यहाँ पे समुद्र के सामने ये कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी। आदरणीय पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कहा कि बाद में चेंज किया गया है, यह रारी, तो ये उनका मत है। लेकिन उस दृष्टि से देखिए, ढोल गवार शूद्र पशुरारी उनका मानना है। लेकिन हम सीधे सीधे मानते लिटरली कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी।
ताड़ना के अधिकारी। एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक एक शब्द के हिंदी में भी अनेक अर्थ हैं। हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं शब्दों का। तो ढोल, कई संतों का हमने देखा अलग अलग कहा कि उसको ठीक से बजाना चाहिए, पीटना चाहिए। पीटना शब्द इसका अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी। ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना भी हो सकता है, लेकिन ताड़ना का वास्तविक अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन। हम पहले ही ताड़ गए थे कि आप किस टाइप के आदमी हैं। जी, आप ये शब्द आपने सुना होगा जी, बहुत जगह जी है। भोजपुरी में हमने सुना कि तू इतना विद्वान हो गई बड़ा कि पहले ही से ताड़ जाता रहा। समझिएगा, आप इतने विद्वान हो गए कि पहले से ही आप ताड़ ले रहे हैं कि हमारे मन में क्या है। जी, ताड़ना का मतलब डीप ऑब्जर्वेशन जी भी होता है, जी मानना भी होता है। लेकिन लेखक ने उस समय किस संदर्भ में लिखा, विश्लेषण सबका अलग अलग होगा। तो हमारी दृष्टि से ताड़ना का मतलब ढोल को ताड़िए कि कितना कसना है, नहीं तो फट जाएगा। जो उसकी कड़ी को आप खींचते हैं तो ताड़ लीजिए ठोक ठोक के ठीक से कि कितने पे रहेगा बैलेंस उसका और ताल मिल रहा है कि नहीं। गंवार, गंवार शब्द ऐसा नहीं कि गांव में रहने वालों के लिए, जो कम पढ़े लिखे या कम समझदार लोग हैं उनको ताड़ लीजिए, नहीं तो उल्टे पुल्टा उसके सामने बोल दीजिएगा तो अपना भी सिर फोड़ लेगा और आपको जेल भिजवा देगा। जी, नहीं ताड़ के ऑब्जर्व करके उचित शब्द का प्रयोग उसके सामने करेंगे, उसके मानसिकता को समझ के ऑब्जर्व करके बात नहीं करते आप, तो हो सकता है कि अपना ही सिर फोड़ ले दीवार में, बोले इन्होंने फोड़ दिया है। तो ताड़िए उसको। शूद्र, शूद्र के बारे में बहुत कंट्रडिक्शन है। अपने अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर अपनी पुस्तक हु इज शूद्रास में जो वर्णन किए वो आज के शूद्र से तालमेल नहीं खाता। ठीक है, अब एक संत तो कहते हैं कि जो भी मेहनत करता है उसके बदले में पैसा लेता है वो शूद्र है। तो जितने भी क्लर्क, ऑफिसर, बैंक मैनेजर, IAS ऑफिसर, ये सब शूद्र है जी। और जो शासन करता है वो क्षत्रिय है। तो जितने पॉलिटिशियन है वो क्षत्रिय है, और जो बिजनेस करता है वो सब वैश्य है। ठीक है, और जो ज्ञान दान लेता है वो सब ब्राह्मण है। ठीक है, तो शूद्र अलग अलग टाइप है परिभाषा। वहां उस जमाने में शूद्र का भाव अलग था, तो उसको भी ऑब्जर्व करिए कि बिना ऑब्जर्व करिए कोई भी स्टेटमेंट उसके सामने मत दीजिए। अब आती है बात की कंट्रोवर्सी क्यों। पहले तो कोशिश की गई कि हम संप्रदायों में बांट के पॉलिटिक्स करें। जब उससे काम नहीं चला, लगा कि अब सनातन और हिंदू लोग संगठित हो रहे हैं, तो चाल चली गई कि जातियों में बांटी। उसमें भी काम नहीं चल पा रहा है, तो हुआ कि इसमें दलित, मूल निवासी, अरे सब यहीं के पैदा हुए हैं, आसमान से टपक के कोई नहीं आया। और जो लोग मूल निवासी की बात कर रहे हैं, हमने एक आर्टिकल एक बोला है, संदेश हमारे शाश्वतम चैनल पे ही है कि हु वाज आर्य और कहाँ के थे आर्य। भारत आर्यों का आदि देश भारत है, उसके फुल प्रमाण उसमें दिए गए हैं। ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट और विदेशियों के द्वारा भारतीय संस्कृति और भारत को दबाने के लिए विदेश से आए हुए बताया गया। ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये अलग अलग बात है। साउथ में धूप ज्यादा है, परिस्थितियां अलग है, तो चमड़ी काली पड़ जाती है, और जो हिमालय साइड में रहते हैं थोड़े गोरे हो जाते हैं। तो ये जो है, इसमें जो आपका कहना था ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और कुछ जैसे आपको कोई बिहार के शिक्षा मंत्री ने किसी ने कह दिया कि ये तो गलत है, रामचरितमानस को तो ये कर देना चाहिए। हिम्मत है अगर यादव जी को तो एक बार बोल दें कि कुरान में भी लिखा है कि नमाज पढ़ के निकलो और काफिर मिले तो गला काट दो, उस पेज को हटा देना चाहिए। ये बोल के देखिए जरा, उनका गला सलामत नहीं रहेगा। अगर अभी ये जो मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि हम पेज जला देंगे और जला भी रहे हैं, अगर हिम्मत है तो एक बार बोल दें कि वो वाला चैप्टर कुरान से हटा दें। अगर एक माँ का दूध पिया है, अगर जिंदा है वो, अगर
उनका स्वाभिमान मरा नहीं है, जिंदा है तो एक बार बोल के दिखा दे, नहीं बोल सकते। इनको लगता है हिंदू कमजोर है, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी गाली दे देंगे, फिल्मों में कुछ भी दिखा देंगे। तो अब समय जा रहा है, अब समय नहीं है कि आप बोल के चले जाएंगे और बच जाएंगे। टोटल कंट्रोवर्सी इज क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सो नाइस ऑफ यू। And straight we coming to question number 8, my dear viewers. The interpretation given by our revered guest today on the verses of Ramcharitamanas is absolutely unadulterated truth. But see the different colors and twists and turns given to the interpretation, that it has a myopic vision to serve the vested interest. That is what the Hindus by and large will have to understand, the efforts, the mischievous conspiracy to create all these controversies, to set them apart, to create internal differences, and the consolidation of Hindus, which has been happening since 2014, that is to be nipped in bud. This is the vibe. This is the crux of the conspiracy which is being hatched across the country today. थैंक यू स्वामी जी। अब हम अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे पास समय तो एकदम नहीं है, कम है एकदम से, मगर जो है चूंकि इतना इंटरेस्टिंग है, 2 क्वेश्चन और है। उसके बाद माय डियर जो है हमारे श्री प्रमोद जी, जो कि वो भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज का इतना ऐतिहासिक चर्चा गुरु जी स्वामी आदर दिए स्वामी हिज होलीनेस स्वामी जी से हो रही है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी हिस्टोरियंस कंसिडर दैट हिंदूज इन एंशिएंट इंडिया एट बीफ. The myth of holy cows by D.N. Jha strives to unravel his fact. He has quoted several pages of Vedas to vindicate his point. What do you have to say on this? Sir, प्राचीन भारत में गौ मांस का सेवन किया जाता था, ऐसा D.N. झा ने, जो कि हिस्टोरियन थे, अब नहीं है हमारे बीच, कम्युनिस्ट फिलोसफी को जिंदा रखने वाले थे वो, उनका मानना है, उन्होंने लिखा है द मिथ ऑफ होली काउज में, कि वेदों का पेज नंबर में उन्होंने कोट करके बताया कि हिंदूज और ब्राह्मण्स भी उस समय जो है गौ मांस खूब खाते थे। राहुल संस्कृतियान जी ने सिंह सेनापति में भी इस बात का जिक्र किया है कि गौ उस समय के जो ब्राह्मण थे वो गौ खाते थे। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है स्वामी? देखिए, इस पे हम जवाब देंगे जी। 1-2 लाइन छूट गया था पिछले वाले में जी। उसमें ये था कि हमने ढोल गवार शूद्र पशु नारी में से एक नारी और पशु का नहीं बता पाए, तो ढोल को भी ठीक से ऑब्जर्व करके कसिए, नहीं तो फट जाएगा। शूद्र का भी कहा हमने, पशु को भी उसकी आंखों से ऑब्जर्व करिए, किस साइड कुत्ता जा रहा है, फट से काट लेगा। तो ठीक से ताड़ना के अधिकारी है ये कुत्ता या पशु, ठीक से ताड़ लीजिए, तब आप उससे पूंछ हिलाने लगे तो तब आप उसके नजदीक जाइए। और नारी माँ है, देवी है, शक्ति है, ममतामयी है, करुणामयी है, लेकिन वो रुद्राणी भी है, वो शक्ति भी है। थोड़ा संभल के ऑब्जर्व करके व्यवहार करिए नारी से, नहीं तो मार खा जाएंगे। ये था। अब ये जो बात है कि वेदों में गौ मांस खाने के पक्ष में इन्होंने, एक कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको न रिलीजन से मतलब है, न ईश्वर के अस्तित्व से मतलब है, न प्रकृति से, नेचर से मतलब है। संस्कृत के शब्दों की व्याख्या, ये कितने संस्कृत जानते थे ये लोग, हम नहीं जानते, लेकिन इनके वक्तव्य से, इनके लिखे हुए किताबों से लग रहा है कि संस्कृत से बहुत बड़ा पाला नहीं था। शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं। जैसे एक शब्द आता है, वो शब्द हम भूल पा रहे हैं अभी, वो मिलाप टाइप का कुछ है शब्द, जिसका अर्थ होता है बलि चढ़ाना और काटना, और उसका अर्थ होता है गले लगना या हाथ मिलाना। ठीक है, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग गाय के लिए या बछड़े के लिए किया गया है कि उसकी सेवा करना, गले मिलना। अर्थ लगा दिया कि उसको काटना, तो काटते होंगे तो खाते होंगे। तो पहले तो उन वेदों के जिन चीजों को ये कोट किए हैं विद्वानों के द्वारा, उसका सही अर्थ क्या है ये निकालना चाहिए। आम आदमी जो संस्कृत नहीं जानता भ्रम में तो पड़ जाएगा। और ये
बहुत काल तक कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा के हिस्टोरियनों ने भारतीय संस्कृति के दमन का कार्य किया। तो अभी जरूरत है कि विद्वान लोग इस पर फिर से भाषा टीका लिखें और उन श्लोकों को चेक करके उसका असली अर्थ समाज तक पहुंचाएं। आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि मिलावट की हद। अभी कुंभ मेले में 2019 में सुदर्शन चैनल का एक रिपोर्टर हमारे पास आया कि गुरुजी इसके बारे में आपका क्या कहना है। कि किसके बारे में? भविष्य पुराण के बारे में। कि भविष्य पुराण है, पुराने हम लोग का। बोले मिलावट की हद है। हमने क्या है? लिखा है साफ साफ कि मैकाले नाम के एक ऋषि आएंगे, भविष्य पुराण, जो भारत के अज्ञान में पड़े हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देंगे। जीसस नाम के एक अवतार आएंगे। किसने भर दिया भविष्य पुराण में? भविष्य पुराण का व्यास कोई ऋषि लिख सकता है? ये सारा मिलावट कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये नहीं कहते कि वेदों में मिलावट कर दी। वेदों के संस्कृत को उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम हमारे अगला प्रश्न में जो है, स्वामी जी, यू कंसिडर इंडिया एज ऑलरेडी ए हिंदू राष्ट्र in consonance with the vision of Mohan Bhagwat ji also, Sar Sanchalak of RSS. Many a times I have heard, I read Mohan Bhagwat ji commenting publicly that so long as even a single Hindu exists in India, India will be considered to be a Hindu Rashtra. This is the perception of Mohan Bhagwat. But our esteemed guest considers or perceives India as already a Hindu Rashtra. So this is the difference. But if, as per your vision, if it is already a Hindu Rashtra, then why people are still aspiring for making India a Hindu Rashtra? अब हिंदी में आप भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, और जैसे कि मैंने इंग्लिश में कहा कि मोहन भगवत जी भी कहते हैं कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। उसका उदाहरण भी मैंने अंग्रेजी में दिया। समय कम के कारण अब उसको हिंदी में नहीं बोलूंगा। अब जो है कुछ वर्ग के लोग हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आखिर ये किस तरह का विरोधाभास है? स्वामी जी, आपका क्या इसका उत्तर है? पहले तो हमारी अपनी विचारणा जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो करें, करना चाहिए, हम उनके समर्थक हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सिर्फ हिंदू राष्ट्र की चिंतन धारा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। कोई हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम हिंदू बन जाए तो हिंदू राष्ट्र होता है, ऐसा नहीं। अथवा कोई हिंदू मुस्लिम बन जाए, कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जहां मुस्लिम पैदा हुए, उनकी उत्पत्ति हुई, वो मुस्लिम राष्ट्र है। जहां मूल निवास और मूल उत्पत्ति हिंदुओं की है, वो हिंदुओं का राष्ट्र है, तो वो हिंदू राष्ट्र है। जब इसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदुओं का स्थान। कहीं अफ्रीका में, कहीं अरब में, कहीं अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हिंदू नहीं पैदा हुए। हिंदुओं का एकमात्र उत्पत्ति का स्थान ये भारतवर्ष है, इसलिए हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, तो हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक ऐसा राष्ट्र जहां की चिंतन धारा लोगों में, जीवों में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती हो कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। जीव जंतु प्राणी मात्र हमारे अपने हैं। आप किस संप्रदाय को मानते हैं, कोई बात नहीं। आप कौन सी पूजा पद्धति मानते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मानते हैं मानिए, लेकिन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और जो लोग भ्रम में है कि हम नहीं बनने देंगे तो हम बना लेंगे, ये तो है ही। आप बनने कैसे नहीं देंगे और कौन इसको बनाएगा? चिंतन में जो गरीबी है, चिंतन में जो दैनीता और दरिद्रता है कि हम कब हिंदू राष्ट्र होंगे, आप जान लीजिए कि आप हिंदू हैं, वह राष्ट्र आपका है। हमारे बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि पूरे विश्व में यहूदी हो, इस्लाम हो या किसी संप्रदाय के मानने वाले, उनकी उत्पत्ति का स्थान उनका राष्ट्र है। और हिंदू की उत्पत्ति का स्थान ये भारतवर्ष हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, आदिकाल से हिंदू राष्ट्र है। आप सेकुलर लिख लीजिए संविधान में, उससे हिंदू दूसरे राष्ट्र से आए हुए नहीं हो जाएंगे।
इसी राष्ट्र के पैदा हुए, ये उनका राष्ट्र है। आप किसी संप्रदाय को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू का राष्ट्र हिंदू का ही राष्ट्र रहेगा। जहां तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, उनकी मान्यता है कि सेकुलरिज्म जो जबरदस्ती संविधान में थोप दिया गया है, वो इस राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे जो उनका दिमाग है या उनकी सोच है कि जब मुस्लिम के लिए बंटवारा कर दिया गया, समझौता कर दिया, इतने सुंदर भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और बांट के एक राष्ट्र आपको दे दिया गया, तो आपके लिए इस्लाम राष्ट्र, तो इधर के लिए हिंदू राष्ट्र। तय यही हुआ, बंटवारा में तय यही हुआ कि भाई हमारी जनसंख्या है तो हम इधर रहते हैं, तो हमारा इस्लाम राष्ट्र हो गया पाकिस्तान। किसी ने कहा कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं तो हमारा स्थान है, हम बलूच है तो हम बलूचिस्तान के नागरिक हैं, हमारा है। ईरानी है तो ईरान के हैं, पाकिस्तान है तो कहां के हैं? मूल निवासी। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों का हंगामा के कारण कि हमको अलग राष्ट्र दे दीजिए, आप अपना हिंदू राष्ट्र रहिए, हम अपना मुस्लिम राष्ट्र रहेंगे, तो दे दिया, बंटवारा हो गया। फिर ये जो कनिंगनेस है, नैरोनेस है, संकीर्णता है इन राजनेताओं की, जिन्होंने जबरदस्ती संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। और सेक्युलर का अर्थ वो नहीं होता जो ये लगा है। अगर सेक्युलर है तो फिर अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? देश सेक्युलर है, सबको स्वतंत्र रहने दीजिए। और अल्पसंख्यक कौन? जो नियम बनाएंगे कि इतने से लोग हों तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इतने करोड़ लोग हैं तो अल्पसंख्यक कहां है? उस दृष्टि से तो कश्मीर में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, या और जगह रहने वाले अल्पसंख्यक है। तो इतनी कंट्रोवर्सी है अपने यहां कि सेकुलर देश भी है, और इसमें फिर सेकुलर में सब सेकुलर, अल्पसंख्यक कहां से आ गए? कौन है अल्पसंख्यक? ये नहीं होता। तो वो भी एक दिन आएगा, इस संविधान में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके मूल स्वरूप में लाया जाएगा। आपने जो जिक्र किया कि उसमें भगवान राम दरबार देवताओं का फोटो था, हटा दिया गया। तो संविधान अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मूल स्वरूप में आएगा, समय आएगा जब जो बनाया गया था वो होगा, जो थोपा गया था वो नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन जो हमारे मित्र बंधु साधु संत कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनकी मान्यता यही है कि उस संविधान से सेकुलर हटाना है। उनकी दृष्टि में तब हम हिंदू राष्ट्र माने जाएंगे। यहाँ ये नहीं कि किसी का धर्म परिवर्तन करा दीजिए या किसी को उसके पूजा पद्धति से वंचित करा दीजिए, सब जियो। ये तो वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है सनातन, और आपका भी राष्ट्रीय है। आप मूल तो ये हिंदुओं का उत्पत्ति है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को नाम रहेगा ही। आपका भी है, आप भी रहिए, लेकिन उस राष्ट्र का नाम हिंदू राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, my dear viewers. Today it was a unique and a spectacular session. We heard, revered His Holiness Swami Umakantanand Saraswati, Mahamandaleswar of Juna Akhara of Haridwar, but he has an access over 60 countries. One of the most distinguished saints of this age and era, who is going to shape the destiny of the entire world by preaching peace and non-violence. But at the same time, he is seeking to awaken the Hindu community to appreciate as well as understand where exactly they are today, and they should develop or regain their vision of being Sanatani. That was my very avowed objective behind inviting as well as earnestly beseeching our esteemed guest today to be our distinguished guest, because we wanted to spread the awakening as well as the consciousness of that of being a Sanatani. My dear viewers, you all would appreciate that Education Pe Charcha is equivalent to educating the nation, wherein every weekend on Saturday, today being an exceptional case because our revered Swamiji is embarking on a visit to Delhi tomorrow morning. That is why we chose today, as the day for our intellectual discussion, that is Education Pe Charcha. Now it is a time that our valued partner, Sri Pramod Ji
now would like to express his own opinion. And Pramod ji has also been a crusader for Hinduism, a crusader for Sanatani values from Dharmad. Now, I request Sri Pramod ji, who is our valued partner, to express his opinion on today's discussion between me and our very, very august audience, His Holiness Mahamandaleshwar Swami Sri Umakanta, Dr. Umakanta Saraswati ji.